In the courts, there are legal arguments always made on why Sharjeel Imam, Umar Khalid and all the Tukre gang should not be released again. And there is a very concerted and well-planned attempt by the woke lobby, by a political section of the political class to build a sense of victimhood around people like Sharjeel Imam and Umar Khalid. In the course of these legal deliberations, the government, through its additional Solicitor General, released a 7 to 8 minute video. Now this video is doing the rounds. I thought that it would not be appropriate to show 30 seconds of it or 1 minute of it. I thought I would begin tonight by showing the entire video. And before I show this entire video, I want to tell all the people out there who are weeping for Sharjeel Imam that this is a man who would instigate Muslims to carry out violence against all other religions. तीसरी चीज, भैया लाठी खाने से न डरे। बिल्कुल। अगर किसी का हाथ टूटा है तो अलग बात है, किसी का पैर टूटा है तो अलग बात है। गर्दन कटेगी पर लाठी खाने से न डरे। टीयर गैस से किसी को एलर्जी हो सकती है तो भागे, सही बात है। लाठी से एलर्जी ना समझे, लाठी दो चार तो पड़ेगी, लाठी खाने की कला भी सीख लें। This is a man who said that the chicken's neck belongs to the Muslims. जितने भी जो भी यहाँ सप्लाई जा रहा है बंद करो, और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है। And the northeastern part of the country should be cut off from the rest of the country. पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूँ, 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, ठीक ही नहीं। यहाँ एयरफोर्स से असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए। He asked Muslims to take over the northeast. He told Muslims that they must carry out chakka jams and block the roads of this country. हमारी ख्वाहिश और हमारी आरज़ू ये है कि दिल्ली में चक्का जाम हो, और सिर्फ दिल्ली में नहीं, देश के जहाँ जिस शहर में मुसलमान कर सकता है, मुसलमान हिंदुस्तान के 500 शहरों में चक्का जाम कर सकते हैं। He said that we must channelize Muslim anger for violence against the nation. We must channelize Muslim anger for violence against the government. और एक सरकार की मनमानी हम कभी कबूल नहीं करेंगे। जब ये बात कम से कम 5-6 मुल्कों की है, 4-5 तो आपकी नजर के सामने है, तो क्या हम एक सरकार की मनमानी कबूल करेंगे? He openly said, ladies and gentlemen, that there must be violence in this country, that homes in this country must not have water and milk, and only then will this country be taught a lesson. हम दिल्ली के मोहल्लों में दूध बंद करना चाहते हैं, पानी बंद करना चाहते हैं, खुल के बोलिए यार। Fundamentalism is too weak a word, inappropriate a word to describe Sharjeel Imam. My question to all the people out there who want to build a campaign to release Sharjeel Imam and Umar Khalid is this: do they take a guarantee that once Sharjeel and Umar are out, they will not work towards a bloodbath in this country? They will not work for all-out riots and violence in this country. We cannot be a weak state anymore. We cannot even be a moderate state. We must be a hard state. The government is making its arguments, but with the greatest of respect, I would like to tell the courts of this country that they must be very careful. Even to release these people for 1 minute would be dangerous because they will work towards a bloodbath in this country, and I'm saying so on the basis of their track record. Therefore, with my compliments, please hear this: the entire 7.5 minute clip of various speeches of Sharjeel Imam, and then you make up your mind on whether this man should be in or out. Here is the 7-minute tape. पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूँ, 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, ठीक ही नहीं। यहाँ एयरफोर्स से असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए। फौज के लिए और जितने भी जो भी यहाँ सप्लाई जा रहा है बंद करो, और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है। वो जो इलाका है मुस्लिम नई चीज़ें हैं। जैसे बीजेपी को फुल मेजोरिटी मिली तो कश्मीर का मसला आया, ट्रिपल तलाक का मसला आया, अयोध्या बाबरी का मसला आया, और अब जो है CAA NRC का मसला आया, और अब CAA। चीज पे इत्मीनान रख लें कि हमला मुसलमानों पर, ठीक है। इस बात पे पहले इत्मीनान कर लेंगे कि हमला संविधान पे नहीं है। संविधान तो बदलता रहता है, कल को इसी को संविधान बना देंगे। आप क्या कीजिएगा, क्या कर लीजिएगा? कोर्ट ने क्या किया बाबरी मस्जिद के साथ, आपको पता है ना?
कोर्ट ने कश्मीर में क्या किया आपको पता है? इस चीज को याद रखें कि अभी बहुत अर्जेंट मामला है, बहुत अर्जेंट मामला है। हमारे पास 4 हफ्ते 28 दिन है अगला जो हियरिंग है। अगले हियरिंग तक सरकार को छोड़ो, कोर्ट को उसकी नानी याद आ जाए। ये आपकी जिम्मेदारी, कोर्ट किसी का नहीं है। आपको लगता है कोर्ट आपका हमदर्द है? आपको ऐसा लगता है? बताइए, ट्रिपल तलाक में क्या किया इन लोगों ने? मुसलमान मर्दों को जेल भेजने का सामान किया है कि नहीं? बाबरी मस्जिद में क्या किया? आपकी जमीन छीन के किसी और को दे दी। ये कोर्ट आपका हमदर्द नहीं है। ये कोर्ट सीए में भी आपसे हमदर्दी नहीं जताएगा। जहां हम महफूज हैं, दिल्ली की खास बात क्या थी कि इंटरनेशनल मीडिया को आने में 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट। वहां अगर ये गोली चलाए तो वो वीडियो पे आ जाएगा। दिल्ली में वैसे भी दिल्ली को ये कश्मीर बना नहीं सकते, आपको भी पता है। इन्हीं की जलालत होगी, हमारी नहीं होगी। अगर ये दिल्ली में गोली चलवाए, आर्मी लगवाए, तो जलालत किसकी है? मुसलमानों की नहीं, सरकार की जलालत है। सरकार की को जलील होना पड़ेगा। ये दिल्ली है भाई, ये फ्लाईओवर गिरे जरा, पूरी दुनिया को खबर हो, समझ रहे हैं ना। और तीसरी चीज, भैया लाठी खाने से न डरे। बिल्कुल। अगर किसी का हाथ टूटा है तो अलग बात है, किसी का पैर टूटा है तो अलग बात है। लाठी खाने से न डरे। ईयर गैस से किसी को एलर्जी हो सकती है तो भागे, सही बात है। लाठी से एलर्जी ना समझे, लाठी 2-4 तो पड़ेगी, लाठी खाने की कला भी सीख लें, समझ रहे हैं ना। इस तरह कम चोट पड़े, इम्पैक्ट कम हो, पहन के क्या आना चाहिए, समझ रहे हैं, एक पट्टा हो बीच में। जब तक ये सब नहीं करेंगे सब, हाँ भाई, जब तक ये सब नहीं करेंगे सारा बेअसर रहेगा। ये चिंगारी कहाँ जाएगी? आग कैसे लगेगी? आग लगाने के लिए 2 काम करना होगा, लाठी खाने के लिए तैयार रहना होगा, अव्वल। नंबर 2 ऑर्गेनाइज होना होगा। बोल रही है कि जंतर मंतर पर जमा होकर रोना गाना करते रहो, आप उनको 2 टूक में जवाब दीजिए, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। 2 जो स्टेप्स हैं उनको क्लियर रखना चाहिए। एक है कि सेंसिटाइजेशन, अवेयरनेस, व्हाटएवर, और दूसरा है प्लान ऑफ एक्शन। प्लान ऑफ एक्शन किसी के पास नहीं, सब सेंसिटाइजेशन की ही बात करते हैं। सेंसिटाइजेशन तो यकीनी तौर पे करना है हमें, लेकिन प्लान ऑफ एक्शन भी पैरेलल में होना चाहिए कि अगर हमारे पास क्रिटिकल मास जमा हो चुका है लोगों का तो उनसे क्या किया जाए, क्या करवाया जाए, इसका कुछ कर सकते हैं। अगर हमारे पास जामिया में 10,000 जवान लड़के हैं तो वो क्या कर सकते हैं। ये मैं 400 केसेस होंगे, हम पे भी FIR होंगे, इसके लिए तो इत्मीनान से होगा। लेकिन ये कामयाबी तभी मिलेगी जब 100 शाहीन बाग जलाना पड़ेगा उसके टेंशन कैंप को, नहीं तो आपको पूछने वाला। ये जो सिटीजनशिप का रजिस्टर बन रहा है और जिनको निकालने की बात हो रही है, वो किसकी जिम्मेदारी है? वो कहाँ से बेघर हुए? क्या वो बेघर इसलिए हुए कि उनको भागना था, उनको बंगाल ने बताया था? नहीं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हुई थी, ये याद रखिएगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग के पादाश में लाखों करोड़ों लोग बेघर हुए और उनकी जिम्मेदारी अकेली न असम की है, न पाकिस्तान की है, न बांग्लादेश की है। ये पहले तो एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, इस बात को याद रखिएगा कि ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। और एक सरकार की मनमानी हम कभी कबूल नहीं करेंगे। जब ये बात कम से कम 5-6 मुल्कों की है, 4-5 तो आपकी नजर के सामने है, तो क्या हम एक सरकार की मनमानी कबूल करेंगे? ताकि हम लोग यही सब 2 हफ्ते से यही कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिश और हमारी आरज़ू ये है कि दिल्ली में चक्का जाम हो, और सिर्फ दिल्ली में नहीं, देश के जहाँ जिस शहर में मुसलमान कर सकता है, मुसलमान हिंदुस्तान के 500 शहरों में चक्का जाम कर सकते हैं, ठीक है। और काम करने का एक ही तरीका है, वो है सड़क बंद, माल बंद करो, इनका सामान हम जाने नहीं देंगे। जो सरकार हम पे जुल्म कर रही है, उस सरकार को हम पैरालाइज कर देंगे। लेकिन गोल क्या है? हम चक्का जाम करना चाहते हैं। हम दिल्ली के मोहल्लों में दूध बंद करना चाहते हैं, पानी बंद करना चाहते हैं। खुल के बोलिए यार। हमने शाहीन बाग में कोशिश की, एक हाईवे ब्लॉक किया जो अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 महीने से ब्लॉक थे। पहला स्टेप है कि मुसलमान अवाम सड़कों पे आए। दूसरा स्टेप क्या होगा? अब उस अवाम का जो गुस्सा है उसको इस्तेमाल किया गया। कैसे इस्तेमाल करेंगे? एक सबसे आसान चीज है, पुरअमन तरीके से सड़कों को बंद करो। इतना आसान काम है। तो अब मैं दिल्ली की बात पर आता हूँ। दिल्ली में हम यहाँ से आने के पहले ही 5 दिसंबर 6 दिसंबर से ही हमने पर्चे बांटने, हम JNU के मुस्लिम तलबा के हमने पर्चे बांटने शुरू कर दिए थे NRC CAA पर।
अक्सरियत है। सड़कों पे उतर के आर्ग्यू करना और सेंसिटाइज करना अव्वल, और दूसरा हमारा काम है कि प्लान ऑफ एक्शन बनाना। और प्लान ऑफ एक्शन कोई एब्सोल्यूट तो नहीं है एक इंडिया के लिए, हर मोहल्ले के लिए और हर इलाके के लिए अलग प्लान ऑफ एक्शन बनेगा। जैसे शाहीन बाग में बगल से हाईवे जाती थी तो ये मुमकिन था कि भीड़ बैठी हुई है, उनको बस कन्विंस कर दो कि यहीं बैठे रहो। ट्रिपल तलाक का मसला जिसमें मर्दों को जेल भेजने का सामान है, जमीन छीन ली गई आपसे, है कि नहीं? कश्मीर का मसला, यहाँ आप धरना दे रहे हैं, छोटे मोटे मीडिया वाले आएंगे, कोई बड़ी खबर तो नहीं बनेगी, ऐसे 10,000 धरने हिंदुस्तान में चल रहे हैं कि नहीं? तो ये आज कोर्ट में हियरिंग थी, आप लोगों को पता होगा, कोर्ट ने 4 हफ्ते का वक्त दिया है सरकार को। अब आपको पता है, अंदाजा है इन 4 हफ्तों में आसाम में क्या क्या हो जाएगा? अंदाजा है आप लोगों को? किसी को अंदाजा नहीं, सिर्फ खुदा जानता है कि इन 4 हफ्तों में आसाम में कितने घर लूटेंगे, ये सब खुदा जानता है। यूपी में 60-70 तो शहीद हो चुके हैं, आगे 4 हफ्तों में क्या होगा खुदा जानता है। पिछले एक एनआरसी भी 1951 से आप लोगों को पता है, तो अच्छा एक और ब्लॉक कर देंगे तो हालत इनकी खराब हो जाएगी, और डीएनडी किसी दिन ब्लॉक हो गया तो मजा ही आ जाएगा। और डीएनडी बिल्कुल नो मैंस लैंड में है, दोनों साइड कोई नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग किसी सुबह 5-6 लोग पहुंचे, बैठ गए, पुलिस का इंतजार करेंगे। पीक टाइम पे पहुंचना है 8-9 बजे की, पुलिस भी ना आ पाए तो शाम तक तो कोई ना आ पाएगा, आएंगे भी दोनों। जैसे अभी भाई कह रहा था कि जंतर मंतर पे 5-5 साल बैठ जाते थे, भाषण सुनते थे, लेकिन किसी को कुछ हासिल नहीं होता।